In the last lecture, we are discussing about homologous series. So today we will discuss about nomenclature of compounds and carbon compounds. So how can we name a compound is very important thing to understood. Means why some compound are known as methane, why some compound are known as ethane. What is the reason? So very first step for determining the nomenclature of carbon compound is calculating the number of atoms. If and which atoms? These are number of carbon atoms. Number of carbon atoms, how many are present in a particular compound, then we can say a particular name for that particular compound. Okay, for example, if I am saying that number of carbon atom is 1, so we uh, tell them methane. Okay, if carbon atom 2, then eth is used. If carbon atom 3, then prop, 4 but, and 5 pent. Means if we have a single carbon atom, like say for example CH4, that CH4 has single carbon atom. That single carbon atom is the reason that CH4 is known as methane. Meth is used for single carbon atom. Second, double carbon atoms, 2 carbon atom, eth is used. 3 carbon atom, prop is used. 4 carbon atom, but is used. And 5 carbon atom, pent is used. So we have to memorize these particular compound names. Okay, and for further, if I am saying that more than 5 carbon atoms are present, then what? If 6 carbon atoms are present, then hex is used. If 7 carbon atoms are present, then heft is used. For 8, oct. For 9, non. And for 10, dec is used. You have to memorize up to 10. Apart from this, if we have to use 11, there are carbon atom, 11 carbon atom, then undec. If there are 12 carbon atom, then dodec is used. Okay. So very first thing is we are done with that how many carbon atoms are present. We first have to name that carbon atom. And if the compound contain a functional group, so what is a functional group? सबसे पहले आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है. फंक्शनल ग्रुप आर द स्पेसिफिक ग्रुप्स. लाइक इफ आई एम सेइंग OH इज देयर. ओके, OH को हम अल्कोहल बोलते हैं. अगर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है तो उन्हें हम हेलोजन बोलते हैं. These specific compound has specific characteristics due to that particular functional group present in a compound. Okay, like say for example, if I am saying that halogen is present, then halogen, there are two things. One is suffix, another is prefix. Prefix मतलब जो पहले आता है, पहले मतलब जो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट से पहले आता है. ओके, और सफिक्स मतलब जो बाद में आता है. अगर हेलोजन है तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, उसका इस्तेमाल करते हैं हम. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास क्या होते हैं भाई? हेलोजन्स होते हैं. एफ के लिए फ्लोरो, सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो और आई के लिए आयोडो. First, we have to write the prefix in case of halogen. Like if I am saying that 2 carbon atom is present and 1 chlorine present, तो क्लोरोइथेन. अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है, 2 कार्बन एटम्स है तो ब्रोमोइथेन. अभी मैंने बताया एक सिंगल कार्बन एटम के लिए मिथ, डबल कार्बन एटम के लिए इथ, ट्रिपल कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम्स के लिए प्रॉप, 4 कार्बन एटम्स के लिए ब्यूट, 5 कार्बन एटम्स के लिए पेंट, 6 कार्बन एटम्स के लिए हेक्स, 7 कार्बन एटम के लिए हेप्ट, 8 कार्बन एटम्स के लिए ऑक्ट, एंड फॉर 9 कार्बन एटम देर इज नॉन, एंड फॉर 10 कार्बन एटम देर इज डेक, एज वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट स्लाइड. सो प्रेफिक्स मतलब जो पहले आता है, सफिक्स मतलब जो
जो मिथित प्रोप ब्यूट के बाद में आता है, जो मिथित प्रोप ब्यूट के पहले आता है उसे सफिक्स बोलते हैं, सॉरी प्रीफिक्स बोलते हैं। जो बाद में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल की, तो अल्कोहल में हमारे पास, तो अल्कोहल में हम यूज करते हैं सफिक्स, एंड दैट सफिक्स इज OL. Like if I'm saying we have two carbon atom, ethanol. If the compound we have is C2H5OH, that compound is known as ethanol. Two carbon atom, if OH is present, we use suffix as ol. Next is for aldehyde. aldehyde क्या होते हैं भाई? CHO ग्रुप को हम aldehyde बोलते हैं। कीटोन क्या होते हैं? CO ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसे हम कीटोन बोलते हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अगर कहीं पे CHO प्रेजेंट है तो उसे आप क्या बोलोगे? एल्डिहाइड बोलोगे। और कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है भाई आपका C डबल बॉन्ड O। ओके, अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है CHO तो प्रीफिक्स नहीं सफिक्स यूज होता है। इन सब में क्या यूज होता है भाई? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स, जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए यूज होने वाले मिथित प्रोब्यूट के बाद में आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड आपके पास है और ये है आपके पास CH3CHO। अगर CH3CHO प्रेजेंट है तो उसका नाम क्या होगा? इथेनॉल, क्योंकि एक कार्बन एटम ये रहा और एक कार्बन एटम ये रहा, दो कार्बन एटम है भी। इथेनॉल के केस में क्या होगा? CH3 ओके। इथेनोइक एसिड CH3COOH आपके पास क्या रहेगा? इथेनोइक एसिड रहेगा, जिसमें दो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके लिए इथ। ओइक एसिड किसके लिए यूज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कीटोन में ओन यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर इंडिकेटिंग बाय अ सफिक्स। अब फंक्शनल ग्रुप को हम ऐड कैसे करते हैं? फंक्शनल ग्रुप की एडिशन ऐसे होती है, जैसे अगर मैं मिथेन इथेन की बात करता हूं तो उनका जो सबसे लास्ट वाला ई है उसको हटा के हम क्या ऐड करते हैं? उसको हटा के हम सफिक्स ऐड करते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं इथेन की, तो इथेन का ई मैंने हटा दिया और हमारे पास क्या आ गया? इथेनॉन। ये किसके लिए है भाई? ये कीटोन के लिए होता है। ओके, कीटोन एंड एल्डिहाइड ग्रुप में बिल्कुल माइन्यूट सा डिफरेंस है। एल्डिहाइड ग्रुप में CHO होता है और कीटोन में आपके पास CO प्रेजेंट होता है। इन केस ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन चेन द फाइनल एन इन द नेम ऑफ कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय इन फॉर डबल बॉन्ड, आइन फॉर ट्रिपल बॉन्ड। अब अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स मैंने आपको पहले डिस्कस करा है। Unsaturated carbon compounds are the carbon compounds which have double bond and triple bond. अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए आइन लिखेंगे, YNE। आपने ANE को हटा के ENE कर देना है डबल बॉन्ड के लिए, और YNE कर देना है किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ओके, नाउ एल्केन्स में और अल्काइंस में सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं? इन तीनों में भी भाई हम क्या करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। और सफिक्स हमेशा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के बाद में आते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ एल्केन की, तो एल्केन में ANE आपका सफिक्स रहेगा, एल्कीन में ENE रहेगा और आइन में YNE रहेगा। आप इस चीज को देख सकते हैं। लास्ट के थ्री वर्ड्स जो हैं वो यूज हो रहे हैं भाई। एल्केन में ANE, एल्कीन में ENE और एल्काइन में YNE। अगर आपके पास C2H5 है तो वो इथेन हो जाएगा भाई।
C2H4 है तो वो इथीन हो जाएगा, ठीक है, और CH2 है तो वो इथाइन हो जाएगा। मीन्स C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H, दिस इज नोन एज इथाइन, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और C2H4 में क्या है, डबल बॉन्ड है, और C2H5 में सिंगल बॉन्ड है। तो इथेन, इथीन एंड इथाइन। ओके, नाउ वी कैन नेम अ पर्टिकुलर कंपाउंड बस जस्ट बाय सीइंग द एग्जांपल। अब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, इस पिक्चर में आप देखिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कीजिए। Cl में कार्बन एटम नहीं है, कभी आप Cl को एज ए कार्बन एटम काउंट करो नहीं। Cl जो है एक इकट्ठा ग्रुप है जिसको हमें, जो हेलोजन होता है, जिसको हमने क्या लिखना है, हेलोजन्स को हमने क्या लिखना है भाई, हेलोजन्स को हमने प्रीफिक्स लिखना है। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पे 1 2 3, चाहे उस तरफ से या फिर उस तरफ से, दोनों तरफ से सेम ही नंबर आ रहा है। दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो प्रेजेंट है भाई। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, 2 क्लोरो प्रोपेन। आपके पास कंपाउंड का नाम क्या हो गया भाई, 2 क्लोरो प्रोपेन। और एक पर्टिकुलर बॉडी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ ऑल द कार्बन कंपाउंड्स और ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, और उसका नाम है भाई IUPAC नेम। जो ये अभी हमने जितनी भी चीज़ें स्टडी करी, ये IUPAC नेम के अंडर आता है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार फिर बता देता हूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग नेम एंड सिस्टमेटिक नेम ऑफ ऑल द पर्टिकुलर कंपाउंड्स। ओके, next we will discuss about chemical properties. In chemical properties we will discuss about combustion. अब combustion क्या होता है, combustion भी बेसिकली हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमने किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन। मींस इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपने किसी भी कार्बन कंपाउंड के लिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूर रखनी है भाई, तब आपके पास जो पर्टिकुलर कंपाउंड्स बनते हैं, दीज आर ऑलवेज, जो आपने किसी भी पर्टिकुलर एल्केन को बर्न करा है तो वो हमेशा क्या बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा भाई। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा और उसके साथ हीट और लाइट रिलीज होगी। ओके, जैसे अगर मैं बात करता हूँ सीधा कार्बन की, कार्बन को बर्न करते हैं, इसका कोई एग्जांपल बताओ। कार्बन को बर्न हम कब करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन को हम बर्न करते हैं, लाइक कोल को हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो कोयला बर्न किया जाता है भाई, अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो तो क्या देता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है और हीट एंड लाइट देता है। अब अगर वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ना हो उस टाइम, या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो, तो उस टाइम आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एंड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल एंड इट्स अ वेरी पॉइजनस गैस। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्योंकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हमारे लंग्स में जो पर्टिकुलर कंपाउंड जैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो बाइंड करता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो 500 गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। बाइंडिंग एफिशिएंसी मतलब वो उससे ज़्यादा बाइंड होता है। इसकी वजह से अगर आप किसी रूम में, जिस रूम में आपने कोई ऐसे पर्टिकुलर कंपाउंड चला रखे हैं, जैसे अगर आप सिंपल कोल को बंद करते हो बिल्कुल रूम को बंद करके, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जनरेट होती है कि आप सफोकेट करने लग जाते हैं। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, अगर आप इथेन को बर्न करते हैं, इथेन को बर्न करा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथेन का फॉर्मूला क्या है भाई, C2H5। 2 कार्बन एटम के लिए इथ यूज करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट. इस रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है भाई इंजन जो कारों में यूज होते हैं. जो पेट्रोल एंड डीजल है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एल्केन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग, ब्यूटेन, प्रोपेन, ओके, डिफरेंट मिक्सचर्स में. उनको बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब हीट और लाइट, हीट उनसे रिलीज होते हैं जिस हीट एनर्जी को यूज किया जाता है. इसीलिए उन इंजन्स को कंबस्शन इंजन्स बोलते हैं. पेंटेनॉल जो है भाई उसकी रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ ऑक्सीजन के साथ तब भी आपके पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट एंड लाइट. नाउ कंबस्शन रिएक्शंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो अभी हमने पढ़ा वो क्लीन फ्लेम देते हैं. क्लीन फ्लेम भाई उसके अंदर सूट्स नहीं आते. सूट्स मतलब क्या होता है, सूट्स मतलब धुआं, जैसे काला धुआं या फिर और पर्टिकुलर जो आपके पास डिफरेंट स्मोक पार्टिकल्स हैं. बट इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जिसका मैंने अभी डिस्कस करा, हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई, वो सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से कंबस्शन इनकम्प्लीट रहता है. अब अगर घरों में अगर आपने परंपरागत चूल्हे देखे होंगे जिन चूल्हों में लकड़ियां जलाई जाती हैं, these chulhas are having a lot of sooty flames are coming from them, and that sooty flames are coming, what the reason is because there is incomplete combustion. आपने देखा होगा बहुत सारा ब्लैक जो धुआं है वो निकल रहा होता है, ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है. दैट ब्लैक स्मोक इज सूटी फ्लेम्स. वो उनके साथ जो धुआं निकल रहा है हीट के साथ, लाइट के साथ, वो उनके केस में ज़्यादा होता है भाई. बट अगर आप ये सब कुछ अगर कंबस्शन प्रोसेस जो है वो पूरी ऑक्सीजन के साथ करते हो तो तब नहीं निकलेगा धुआं. नाउ जो गैस स्टोव हम घरों में यूज करते हैं, सेकंड पॉइंट, गैस स्टोव एट होम हैज इनलेट फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हैज द मिक्सचर बर्न विद क्लीन ब्लू फ्लेम. उसमें भी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो सफिशिएंट होती है. बट इफ द इनलेट्स आर ब्लॉक्ड, जहां से ऑक्सीजन ना मिले, तो फ्यूल जो है वो बर्न ही नहीं होगा. ओके, हैंस द बॉटम पार्ट ऑफ कुकिंग वेसल गेट ब्लैकेंड. इसीलिए जो नीचे वाला हिस्सा है जिसमें हम खाना बना रहे हैं वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि जिस टाइम हम किसी बर्तन को रखते हैं फ्लेम पे तो हम ऑक्सीजन की जो सप्लाई है जो पर्टिकुलरली पहले जा रही थी उसको ब्लॉक कर देते हैं. ठीक है, अगर हम बगैर किसी बर्तन को रखे देखते हैं तो आपके पास ब्लू फ्लेम आ रही होती है बिल्कुल पर्टिकुलरली, और इसकी वजह से जो बर्तन है वो ब्लैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि सूटी फ्लेम्स अगेन आर कमिंग. इफ वी आर बर्निंग समथिंग और बर्निंग अ फ्यूल इन absence ऑफ ऑक्सीजन, अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. कंबस्शन ऑफ फोसिल फ्यूल्स. अब फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? जितने भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं, पेट्रोल, डीजल, दीज आर एक्सट्रैक्टेड, मतलब निकाले जाते हैं फ्रॉम अ क्रूड ऑयल्स, एंड दीज क्रूड ऑयल्स आर प्रेजेंट एज फोसिल फ्यूल्स इन अर्थ एटमोसफियर. ओके, सो कंबस्शन ऑफ फोसिल फ्यूल्स जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, कोयले और पेट्रोलियम कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर, और इनकी वजह से नाइट्रोजन एंड सल्फर जो है उनके ऑक्साइड बनते हैं. नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, नाइट्रस ऑक्साइड बन गया. नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है. दीज ऑक्साइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन. These oxides are responsible for major problems to the lungs. Okay, because they can form, you can say, you have seen that the pollutant level, or in the newspaper already, that the pollution index number is increasing day by day. Okay, PAN. So these are very harmful gases. Next is we can say
If we have a gas stove, okay, and we are having clean inlets for sufficient supply of oxygen, स्टोव को बंद करते हैं, स्पून को हीट करते हैं, स्पून पे ब्लैक लेयर नहीं आएगी भी। एक सेम स्टोव पे अगर आपने इनलेट्स को ब्लॉक करा है और हीट करा है स्पून को, तो उस पर ब्लैक लेयर आ जाएगी, बिकॉज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, जिसकी वजह से अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसको आप बहुत तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट व्हाई ऑक्सीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, ओके, बाय दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपने सिंपली एक स्पून लेनी है, एक स्पून के जो है उसको आपने हीट करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं तो ब्लैक नहीं होगी, और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं तो वो ब्लैक हो जाएगी, ओके। Now, next is oxidation process. So, what is an oxidation process? Carbon compounds can readily oxidize or on combustion. जिस टाइम हम जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको कंबस्ट करते हैं, उनको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जैसे आपके पास इथेनॉल है, वो ये इथेनोइक एसिड है भाई, इसको आप एसिटिक एसिड भी बोलते हो, इसका जनरल नेम होता है। मिथित 2 कार्बन एटम है इसमें। मिथेनोइक एसिड जो है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड जो बनता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये जो हमने लिखा हुआ है अल्कलाइन केमनोफोर और एसिडिफाइड K2Cr27, अल्कलाइन केमनोफोर भी पोटाशियम परमैग्नेट होता है और K2Cr27 क्या होता है, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है। इन दोनों को हम हीट करते हैं तो हीट करने से हमारे पास इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें हम इसमें आप देखिए कि एक OH था, आपने एक और ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो ऐड हो जाता है उसको आप बोलते हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडिशन रिएक्शन। ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट, आपने एडिशन करना है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में डिफरेंट कंपाउंड्स का। ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से अभी, एल्कीन्स एंड अल्काइंस, जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उनको हम कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट होता है एक ऐसा कंपाउंड जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट को यूज करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने कोई रिएक्शन प्रोसीड कराई, उस रिएक्शन को होने में टाइम लग रहा था मान लिया 2 घंटे, और कैटलिस्ट के डालने के बाद वो रिएक्शन जो है वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। तो कैटलिस्ट इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, और कैटलिस्ट में इटसेल्फ कोई चेंज नहीं आता अभी, ओके। सो अगर हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो वो एडिशन रिएक्शन होता है, क्योंकि हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट किसको यूज करते हैं, पैलेडियम निकल को, ठीक है। Palladium and nickels are used as catalyst. You can see here, we can add hydrogen to double bond. अगर हम हाइड्रोजन डबल बॉन्ड में ऐड करते हैं तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है भाई, और ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और दोनों कार्बन्स पे एक एक हाइड्रोजन लग जाता है। इस रिएक्शन का जो मेन यूज है वो होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में। अब इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन का। वो कैसे, हम जो डालडा घी और वेजिटेबल घी यूज़ करते हैं दैट इज़ मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। अब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हम उसमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट, ओके। सो
all the vegetable oils can be converted into vegetable fat or dalda ghee by addition of hydrogen gas इन प्रेजेंस ऑफ निकल. तो उससे एडिशन रिएक्शन होती है. एनिमल जो फैट्स होते हैं ना भाई, एनिमल फैट्स आर ऑलवेज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब भाई उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो उन्हें हमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है. ओके. नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एज अ नेम सजेस्ट, कोई एक पर्टिकुलर एटम को दूसरा एटम या फिर फंक्शनल ग्रुप अगर रिप्लेस कर दे तो उसे आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे. सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हटा दिया, मीन्स आपने रिप्लेस कर दिया. तो किसी रिएक्शन में एक फंक्शनल ग्रुप और एटम को अगर दूसरा फंक्शनल ग्रुप और एटम रिप्लेस कर देता है तो उसको आप बोलते हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एडिशन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोकार्बन is a fast reaction that result in replacement of hydrogen atom one by one. This is an example of substitution reaction because chlorine replace hydrogen attached to the carbon atom in hydrocarbon. Like you can see here. In case of substitution reaction of methane CH4, एक चीज़ आप भाई जो गोबर गैस होती है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में मीथेन प्रोड्यूस होती है. गोबर गैस जो प्लांट होते हैं ना उसमें, जिसमें हम गोबर डंग ऐड करते हैं, दैट पर्टिकुलर प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस एंड विच वी कैन बर्न. हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें हमने बताया कि अगर हम मीथेन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोमीथेन से, जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस पहले से करा हुआ है, तो आपके पास हाइड्रोजन की जगह सारी जगह क्लोरीन आ सकता है अभी, और इसको हम बोलते हैं पर क्लोरोमीथेन. और इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं क्योंकि 4 क्लोरीन है ना. अगर एक क्लोरीन है तो कुछ लिखने की जरूरत है, 2 नहीं, 2 है तो डाई क्लोरो, 3 है तो ट्राई क्लोरो, और 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन भी बोलते हैं. सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाई क्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देता है. उसको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हो, बट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में बेसिकली वो सब्स्टिट्यूट करता है, उसकी जगह पे आ जाता है. क्योंकि इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो मतलब उसके आसपास जो स्पेस में कार्बन एटम के चारों तरफ डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. तो वो सब्स्टिट्यूट करके अगर उसकी जगह पे आता है तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं भी. ओके. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.